Why Islamic countries love India? Why does Islam love India? I mean, I feel like that's just kind of a fake lie, but let's find out. Like, if you like Sharia law so much, why not stay in the countries where Sharia law is already at? Why try to enforce it in other places? देशों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आते होंगे Or has it really helped the Indian government in its propaganda against the Kashmiri? A 21-year-old boy from Pakistan who, along with 9 other trained terrorists, held Mumbai hostage for 60 hours. Disturbing news coming in from Jammu and Kashmir. It's a terror attack that has led to the death of 7 civilians in Kashmir. अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। 2001 के संसद हमले में साजिश का दोषी था अफजल गुरु। गजवा हिंद असल में जो सरकार By Pakistanis and are so high now? High off what? Poppy seeds? गज़वा हिंद जिसका जिक्र पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले किया था उसकी इब्तिदा हो चुकी। लेकिन आजकल इस्लामिक देशों और भारत के बीच के हालात थोड़े डिफरेंट हैं। Is it crazy that I understood the intro? Hold on. I just understood exactly what the fuck was happening and I didn't have the captions on. Whoa! I'm learning! Wow! Okay. जय सिया राम। थोड़े नहीं, बहुत ही डिफरेंट है। Oh, wait, they're high up in heaven? 5 Pakistanis had a part. Oh, wait, Yash, what can you tell me? Can you give me more context on that? And also the architecture here. What the hell? सऊदी अरब सरकार ने अरबी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता जारी की है। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश यानी ईरानियन, अरब, टर्किश देश पाकिस्तान के साथ देखिए कैसा बिहेव कर रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके पागलों की तरह पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया है कि पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान के भिखारियों से एक मुस्लिम देश इतना तंग आ चुका है कि वो अब पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी जमीन से भगा रहा है। हमेशा मदद करने वाले सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हम पाकिस्तान को फ्री के पैसे How do you guys feel about this guy? I don't know enough about him, but he seems like, and I don't know if this is correct, but from the little bit that I know, he seems like he's very progressive for Saudi Arabia and is perceived as good, right? Like he's at least taking it in a better direction. Maybe not the perfect direction, but a better direction. Yeah, they were trying to infiltrate and one of them stepped on a mine. Also, they were trying to infiltrate and fell on a trap. Watch out! It's a trap! देते थे वो अब खत्म हो गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात Maybe I am God now. बदल दी। ये तो बॉलीवुड के लेवल का फ्लिप फ्लॉप हो गया है इस्लामिक देश और भारत के रिलेशनशिप के बीच में। जो बॉलीवुड एक हफ्ते पहले हिंदुत्व पॉलिटिशियन को अपनी फिल्मों में विलन बताता था, वही अगले हफ्ते मोदी जी के साथ इतनी खुशी से फोटो ऐसे खिंचवा रहा है जैसे उनका अपना चचेरा भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया हो। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये इतना ड्रास्टिक He's good, at least. He's good, at least working in modernizing its society. Yeah, that's like that's kind of my gist that I've gotten from him. And shout out to Dr. Jay Shankar right here on screen. भारत की एक्सपर्ट डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की ग्राउंड वर्क और मिडिल ईस्ट के You know, like some people are like so good at their jobs. Like this guy is almost like made for this role. And even though I'm sure he'd be a good prime minister, finding somebody to do this job as good as him, as Dr. J over here, would be very difficult. ट्रेंड्स को बहुत पहले से समझ जाने का रिजल्ट है। जब तक पाकिस्तान और टर्की जैसे देश रिएक्ट करते, इंडिया अपना गेम ऑलरेडी सेट कर चुका था। तो And you guys saw, I'm calling it. You guys, I've been calling this shot since way before even the election. Indian and American tariffs are down, and in fact, it's going to be cheaper to get good American products in India going forward. I think next week is going to be making it official. आइए अब जानते हैं पिछले 10 सालों में इंडिया की सबसे We about to be amigos. एक के बारे में। If we weren't already, we really about to be amigos. हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको
एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए आज इस्लामिक देशों और भारत के बीच में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप आया है वो इतना सरप्राइजिंग क्यों है और इतनी बड़ी डील क्यों है, ये समझने के लिए हम जानते हैं कि ट्रेडिशनली Yo, how tall is Modi? Because Modi didn't look that tall hugging that guy. भारत और इस्लामिक देशों के बीच का रिलेशनशिप कैसे Yeah, he's doing good work in Saudi? 10 साल Nice. पहले इस्लामिक देश और भारत के बीच का रिलेशनशिप वैसा ही था। I was talking about जैसे Dr. Jay लॉरेंस बिश्नोई और Shankar सलमान खान when के I was बीच making का those है। comments. इस्लामिक देश भारत के खिलाफ अपने मकसद को फॉलो करने में जुड़े हुए थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी बेस्ड चैरिटीज और एनजीओज ने भारत में पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बहुत फंड किया है। 9/11 की रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 अटैकर्स में से 19 में से 15 सऊदी नेशनल्स थे। 2010 की विकीलीक केबल्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी फंडिंग सोर्स था। बेसिकली सऊदी आतंकियों का शार्क टैंक था। टेररिस्ट आते थे अपने आइडियाज पिच करने के लिए और सऊदी फिर उनको लाइन से फंड किया करता था। सऊदी It's Shark Tank for terrorists? अरेबिया और गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान और भारत को मदरसा एजुकेशन और जिहादिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए America wants India to be its global lieutenant? Yeah, I could see that. I could see that. And just like, yo, help enforce and like solve these conflicts. Like, we can't be the only quote unquote global police. Like, that's not fair for America. And it also paints us in a really weird light. Like, especially when some of these conflicts are bordering nations that are closer to the European nations. That's like, yo, help fix what's happening at your border. We shouldn't be the ones doing it too. And Modi is 5'7"? I'm taller than Modi. सऊदी ने पाकिस्तान में 1000 प्लस मदरसे बनवाए थे और उनको फंडिंग दी थी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए। 2013 के रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने For some reason I thought Modi was tall. $300 million पाकिस्तान में I thought Modi was like 6 foot. रेडिकल ग्रुप्स को सेटअप करने के लिए दिए थे। सऊदी फंडिंग इंडिया भी आ रही थी, स्पेसिफिकली वहाबिज्म की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। That's why I was like, how tall is the other guy? अरेबिया ने 1700 करोड़ के आसपास रुपए इंडिया में खर्च किए हैं वहाबिज्म प्रमोट करने के लिए। 2011 से 2013 के बीच में 25,000 वहाबी प्रीचर्स इंडिया आए थे जिहादिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। और आप देखिए सऊदी की फंडिंग का नतीजा भारत में क्या हुआ है। 1947 में आजादी के समय पे Hold on. 88 मदरसे। Do you guys see what the CEO of secularism is wearing? An Adidas hoodie? Does this mean he supports Kanye? थे सिर्फ भारत में, लेकिन मौलाना Nevada guy, सिद्दीकी come on. ने क्लेम किया है कि Get on him. 2003 आते Get off me, get on him now. मदरसों की संख्या 88 से बढ़ के 1,25,000 हो चुकी है, जिसमें अराउंड 30 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जिनका ऑपरेशनल कॉस्ट अराउंड 14 बिलियन रुपीस के आसपास है। और 1914 से 2003 तक 88 से 1,25,000 हुई ये मदरसों की तादाद। अब देखिए असली शॉकिंग खबर। 2003 से 2006 के बीच में यानी सिर्फ 3 सालों में मदरसों की तादाद 1,25,000 से बढ़कर 5 लाख हो गई थी। और ये सब कुछ हुआ इन गल्फ कंट्रीज से फंडिंग की वजह से। और आप देखिए कि इन मदरसों में जो वहाबी किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें क्या सिखाया जा रहा है। हर मुस्लिम औरत को पर्दा करना जरूरी होगा वरना सख्त सजा मिलनी चाहिए। सब मर्दों को लंबी दाढ़ी रखनी जरूरी है। औरतें काम नहीं कर सकती हैं। आदमी और औरत पब्लिक में मिक्स नहीं हो सकते हैं। शरिया लॉ को फॉलो करना बिल्कुल जरूरी है और हर क्राइम की सजा शरिया लॉ के मुताबिक मिलनी चाहिए। मर्दों को एंकल के ऊपर पैंट पहननी पड़ेगी। जोर से हंसना, म्यूजिक सुनना, डांस करना और टीवी देखना। This is where it's like this is already crossing the line. But then this is where it becomes laughable. You're telling me we can't laugh out loud in society? We can't listen to music? We can't dance or watch TV? Like, there's nothing but oppression here and brainwashing. Like, this can't be real. This is evil. This is evil. ये सब हराम है। Like, not laughing. You don't want me to laugh? Spreading laughter is joy, and that brings happiness. To not want to spread that, that is evil. हमारे देश में कुछ लोगों को They're हिंदुत्व से idiots? प्रॉब्लम है। Why are you complimenting them? Saying that they're an idiot is being way too kind. लेकिन इस तरह की टीचिंग से They're retarded. प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ब्रेन ट्यूमर तो बाद में देख लेना, लेकिन देखो यहाँ पर मेरे को खुजली हो रही है 2-3 दिन से, जरा पहले उसको चेक कर लो। तो ये हालत हो रखी थी, इतनी बुरी रिलेशनशिप थी गल्फ कंट्रीज और भारत के बीच में। और आप देखिए कि पिछले 10-12 सालों में कितना शॉकिंग, कितना सरप्राइजिंग चेंज आया है इन देशों की रिलेशनशिप के बीच में। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को ओवरहॉल करने का डिसीजन लिया और अजीत डोवल, एस जयशंकर और सुषमा स्वराज जैसे लोगों को इन पोजीशंस में डालना शुरू किया, जिनको इंटेलिजेंस गैदरिंग का और खासकर डिप्लोमेसी का काफी डीप एक्सपीरियंस था। पहले बात करते हैं अजीत डोवल की। अजीत डोवल ने एनएसए बनते ही कुछ बड़े डिसीजंस लेना शुरू किए और इंडिया की पोजीशन I don't actually think I know anything about this guy. बिल्कुल स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए 2014 के पहले ये हालत थी कि आतंकी इंडिया में घुस के इतनी आसानी से अटैक करते थे जितनी आसानी से बांग्लादेशी सैफ अली खान के घर में घुस जाते थे। 2016 में इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। 2019 में पुलवामा अटैक के बदले में पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक भी किया। डोकलाम में चाइना के साथ भी 2-3 स्टैंड ऑफ हुए, जिसमें कि इंडिया ने चाइनीज आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया और चाइना को भी मानना पड़ा कि इंडिया से ऐसे मुंह उठा के बकचोदी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ So, and I believe every country has their own deep state. Is he a part of that? He's the James Bond of India. फॉरेन मिनिस्ट्री में सुषमा स्वराज और एस जयशंकर जैसे लोगों को इंस्टॉल किया गया और उन्होंने एक बहुत No worries, Sheena, I'll be here. बनाना शुरू किया। यूएस के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनाई, रशिया के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनाई, साउथ अमेरिका के साथ, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप That's what I'm telling you, Dr. Shankar is gangster. साथ साथ यूएन में पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को एक्सपोज करना भी शुरू किया। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाया। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some. See what I mean? He's gangster. Necessary for our energy security, but I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an hour. इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाया कि उससे दुश्मन भी इंप्रेस हो रहे थे। पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद क्रिकेट स्टेडियम में लोगों को भर भर के जयशंकर की क्लिप्स दिखा रहे थे और शाबाशियां दे रहे थे। Every other source of oil we have, and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आई मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे। हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये वही स्टेडियम है बाय द वे जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2029 में तैयार होने वाले हैं। और मिडिल ईस्ट की जब बात आती है तो इंडिया ने बहुत ही कैलकुलेटेड आउटरीच का सिस्टम डेवलप किया मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस तरह का कैलकुलेटेड आउटरीच नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान से दोस्ती करना वैसा ही होपलेस कॉज है जैसा कि पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देना। लेकिन See, this just blows my mind to me. Everyone looks at Pakistan like it's impossible to be their friends. How do we fix that? Like, and maybe me and you can't fix that. But if I can hand you a magic wand and you could wave it and fix the relationship, how do we coexist with Pakistan? Delete? लेकिन असली क्रेडिट जो इंडिया को मिलना चाहिए वो है इंडिया का एक ऐसी चीज नोटिस करना जो एक्चुअली Magic wand, सरप्राइजिंगली दुनिया में Control, बहुत सारे Alt, लोग नोटिस Delete. नहीं कर पाए। इंडिया ने कई साल पहले स्पॉट कर लिया था कि मिडिल ईस्टर्न इस्लामिक देश जो हैं वो अपने देशों की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बदल रहे हैं, खासकर यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश। The culture is just so old there too, and or at least with the tradition is so baked in, and there's just the harem boys and grooming of children, and once more the suppression of laughter, music, and joy. It seems so dreary. Why would anybody think that's a good thing when you can look at the rest of the world and see laughter and music? And the only thing I could think of is them being just resentful and angry that they didn't grow up with it. So they're like, no, I want to watch the world burn because my world was burning as a kid, and I can realize it wasn't the whole thing. It was just my little patch of land. इंडिया दुनिया में कई देशों से पहले ये समझ गया था Like there's more conflict in the Middle East than there is in Mordor and Lord of the Rings. कि ये देश जो है ये अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और इंडिया ने इनके साथ डीप स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस डेवलप करने शुरू कर दिए थे। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये जो इतने बड़े-बड़े इस्लामिक देश हैं ये क्यों अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, Pakistan मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए इन देशों के बारे में एक स्पेशल चीज ये है कि ये देश बहुत रिच है, लेकिन No, I like Pakistan more. रिच होने का सबसे बड़ा रीजन है ऑयल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया जो है वो अपनी ऑयल डिपेंडेंसी कम कर रही है, कुछ न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी ईवी कार्स डेवलप हो रही हैं दुनिया में। उसके ऊपर से अरेबिया में तेल के रिजर्व्स धीरे-धीरे खत्म भी हो रहे हैं। हो सकता है कि 50-60 सालों में ये रिजर्व्स खत्म भी हो जाएं। तो अगर सऊदी अरेबिया को अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस मेंटेन करके रखनी है
तो उनको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। ये वही रीजन है कि क्यों आर्चीज और लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवीज के फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड छावा जैसी मूवीज निकाल रही है। बॉलीवुड की हालत भी बाबू भैया वाली हो रखी है। मरने से पहले मेरे बाप के कर्जे का एक एक रुपया चुका के। तो सऊदी अरेबिया नीड्स इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। सऊदी की तेल की कमाई पिछले कुछ सालों से बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी और फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड और भी कम हो सकती है, इसलिए नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है, जैसे Pakistan, or the Pakistani, I'm not going to call them that anymore. I like Pakistanis are the extremists who are blinded by the faith and make a new nation out of our land. What would you expect for them? Not much more than this. I just would like to see, to me, kindness. And sometimes kindness is taking something out of its misery before it even realizes it's gone. You know what I mean? Almost like in Control Alt Delete. Just like they blink, they were there, and then now they're not. टूरिज्म, बैंकिंग, आईटी एंड टेक्नोलॉजी। सऊदी अरेबिया को अपनी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। इसका मतलब नए इकोनॉमिक सेक्टर्स डेवलप करने हैं, अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का फुल इस्तेमाल करते हुए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है, और इसके लिए उन्हें अपनी सॉफ्ट पावर और इमेज की मेक ओवर भी करनी पड़ेगी। अगर भैया इनकी इमेज पाकिस्तान जैसी हो रखी है तो कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? इसीलिए सऊदी इतने सालों से अपनी ग्लोबल इमेज इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स ला चुका है, जो उनके विजन 2030 का एक बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि आगे जाते हुए कल्चरल और पॉलिटिकल सॉफ्ट पावर का गढ़ भी बनना चाहता है। What's up, cat? विजन 2030 में I'm सऊदी much better now that I'm hanging out with you guys. का हिस्सा अभी 50% ऑयल से आता है। इसको गिराकर ये सिर्फ 60% तक लाना चाहते हैं। ये पेट्रोकेमिकल्स, टूरिज्म, सोलर पावर जैसे नए सेक्टर्स डेवलप करना चाहते हैं। ये अपनी टूरिज्म में बूम लाना चाहते हैं। ये अपनी उम्रा विजिटर्स को 8 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन तक लाना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक म्यूजियम बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट सऊदी के हेड मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो अरेबिया में यूरोप की तरह ही एक इकोनॉमिक और सोशल रेनेसांस लाना चाहते हैं। سوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. So he wants the Middle East, he wants Saudi Arabia to be at the forefront of the world before he dies? Bro, I think you got to worry about being a top 10 place before you even worry about being a top 1 place. और आप देखिए कि इंडिया ने कैसे इस ट्रेंड को रिकॉग्नाइज किया। Like I'm conflicted because from what I understand, he's done a very good job at modernizing Saudi Arabia, right? But this idea of Islam and not laughing and not having music and like all of that oppressionary thing, I think is just kind of insane. और इन देशों Like I don't think you can achieve that goal while following those strict rules. के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करनी शुरू की। 2022 में इंडिया और यूएई ने सीपा साइन किया, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने वाला है। इस एग्रीमेंट के तहत यूएई ने इंडिया के 97% टैरिफ लाइंस पर प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया है, जो इंडिया के जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, लेदर और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसी तरह सऊदी का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। सितंबर 2023 में सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में अपने सॉवरेन वेल्थ फंड का ऑफिस खोलने वाले हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फलीह ने कहा कि ये ऑफिस सऊदी इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में फैसिलिटेट करेगा और दोनों देश के इकोनॉमिक टाइज को और भी मजबूत करेगा, जिससे फ्यूचर में बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच का 100 बिलियन तक जा सके। नवंबर 2024 में सऊदी अरेबिया ने 9 इन्वेस्टमेंट डील साइन की है भारत के साथ, जो $10 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें इंडिया की वेदांता भी शामिल है। वेदांता सऊदी अरेबिया में रास अल खैर में एक कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी बना रहा है, जो 4 लाख मेट्रिक टन पर ईयर का कैपेसिटी रखेगा। ये I don't know if this is true, and I just thinking of this for Saudi Arabia because obviously they have a lot of oil. What do you guys feel? And this is not what I believe. This is just a thought, something I read on the internet, that oil is like blood of the earth, and we're extracting a lot of it. But if it's blood, just like how the human body replaces blood, the earth will replace the oil. And maybe it happens faster than we assume. ये प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया को कॉपर प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट। You guys agree with that or no? सितंबर 2024 में इंडियन ईवी I don't know how much stock I put into it. मोबिलिटी ने अनाउंस किया कि उसे सऊदी अरेबिया में एक जॉइंट वेंचर का एक बड़ा ऑफर मिला है। सितंबर 2023 में इंडिया और सऊदी अरेबिया ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जो रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और
He will change many rules. Maybe in the future he'll change or modify the rules, like how Christianity changes the rule, changed a lot of the rules. Yeah, no, I could see that. I could definitely see that, and maybe like he just needs a little bit more momentum behind him so that he doesn't get as much pushback. I could see that. I could see that because it's like some of those rules are just insane, right? And I think people who probably interact with the rest of the world can see the insanity of it. एनर्जी सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में दोनों देशों को और भी क्लोज लाएगा 2023 में जो भारत में G20 समिट हुई True, but the replacement will take billions of years. That's kind of my thought. I was like, oil probably will get replaced, but just not as quick as we're pulling it out. यूरोप कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था. That, hold on, I'm sorry I keep pausing this. This right here, I think, is why America and India's future is so bright, because China's over here, and if we want to get something for China, we have to go all the way around, go all the way down. But if we do deals with India, now we can not only just go around from Africa, but we now have this corridor that Dr. Jay Shankar has been leading with Saudi Arabia, which is great. I love seeing this. यूरोप कॉरिडोर को This is great. This is ये great. कॉरिडोर एक एम्बिशियस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है. This is like infrastructure, not just for the community, like for like countries, but for the world. This is like world building infrastructure to make us more connected, more easy to do business. I think that's a great thing for the world. ग्लोबल कॉमर्स का पूरा गेम बदल देने वाला है और चाइना की हवा निकाल देने वाला है. इसके की फीचर्स हैं, ये कॉरिडोर इंडिया को यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करेगा. और इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि ये सुएज कैनाल का एक अल्टरनेटिव है जो बहुत ही कंजेस्टेड हो चुका है और जहां पर यूएसए की बहुत दादागिरी रहती है. चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये जवाब भी है जो चाइना की इकोनॉमिक हेजेमनी को काउंटर भी करेगा बड़े तरीके से. और ये प्रोजेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि It really is like the Silk Road 2.0. Maybe it's not even Silk Road 2.0. It's just like a new road. Like the Silk Road itself just got a patch update. You're like, yo, that old game, the Silk Road, you guys remember that game? It just got an update. That's what it's like. भी बहुत सिग्निफिकेंट है. और सबसे अनबिलीवेबल पार्ट You got to read the patch notes. इसमें Jews, Muslims, Christians और Hindus के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है. Yeah, Trump sanctioned capital port in Iran. Nice. Yeah, with new tech. Exactly. Yo, boys, we got new tech to learn. और Instagram पे cringe और fake deep quote post ना करें. For example, अपनी vacation की फोटो डाले और बोले not all. I would travel to the beaches to see them humps. I don't know about you guys. Those who wander are lost. Vacation पे योगा करते हुए अपनी फोटो डाले और लिखे inhale the future, exhale the past. I'll inhale. और लिखे it was not the answer, but it made me forget all the questions. So deep यार. मैडम किसी को नहीं लगता है, सबको क्रिंज ही लगता है. और देखिए कि इंडिया की इंटेलिजेंस apparatus ने The report was developed by India. Was it funded by America? Developed by India? US troops ने withdraw किया था 2021 में अफगानिस्तान से. Initially पूरी दुनिया ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान ने ये सोचा था कि तालिबान के पावर में आने से भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और सारा का सारा एडवांटेज पाकिस्तान के पास आने वाला है क्योंकि भाई आखिर पाकिस्तान ने तालिबान को अपने खुद के बच्चे की तरह इतनी नाजों से पाला है. लेकिन जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट पावर में आई, इंडिया किक्ड इनटू गियर. इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अजय डोवल ने स्ट्रेटेजिक टॉक सेटअप किए तालिबान के साथ इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. इंडिया ने अपनी काबुल की एम्बेसी रीओपन की, ह्यूमैनिटेरियन एड और ट्रेड फैसिलिटेट करना शुरू किया. और जब कोविड के समय पे तालिबान आया था, not funded, it's 100% Indian. तब भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में कुछ भी हो. So Trump just gave the okay, the sanctions for it. Like, how's America tied to it? अगर 5 साल पहले आपसे किसी ने कहा हो कि तालिबान भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एलाई बोलेगा, तो आप उस बंदे को मतलब सोच लीजिए क्या बोलेंगे. लेकिन यही हुआ. ये तो उतना ही मिराक्युलस है जितना राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे रश आवर पे ट्रेन में सीट मिल जाना. आपका अपनी मिडिल क्लास फैमिली को बोलना कि आप यूपीएससी नहीं देंगे, उल्टा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनेंगे और आपकी फैमिली आपकी दोनों टांगे तोड़ने के बजाय आपको एक एक्सपेंसिव कैमरा गिफ्ट कर दे. तो इंडिया ने ऐसा क्या किया कि तालिबान इंडिया को अब स्ट्रेटेजिक एलाई मान रहा है. तो देखिए इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली जिस तरह वो अफगानिस्तान को पहले हेल्प कर रहे थे, तालिबान के आने के बाद भी हेल्प करते रहे. फूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया, 50,000 मेट्रिक टन वीट No, absolutely should be. Ports are super important. पोर्ट के थ्रू ईरान से भेजा. मेडिकल एड प्रोवाइड किया. 45 टन एसेंशियल मेडिसिन इंक्लूडिंग टीबी मेडिसिन. 250 टन और मेडिकल एड प्रोवाइड किया. कोविड-19 के 5 लाख डोजेस भेजे वैक्सीन के. 28 टन ऑफ अर्थक्वेक रिलीफ भेजा. टन्स ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा. 11,000 यूनिट्स हाइजीनिक किट्स भेजे. बेबी फूड भेजा. ब्लैंकेट्स भेजे और एसेंशियल सप्लाईज भेजे. $25 मिलियन का डेवलपमेंट.
Today, I saw an accident right before my very eyes. My eyes, a drunk driver bumped 2 cars and 2 bikes, and 2 people died on the spot. 3 people hospitalized, and the deaths were horrifying. The head and 1 leg separated from his body. Cat, you okay, brother? Are you okay, Mimigo? How are you handling it? You okay? I know seeing something like that could be super traumatizing. So, I hope you're okay. You're loved. Give love, send good energy to the people that lost their lives, to the family. Maybe say a little mantra, a little prayer, a little seance, whatever you need to make yourself at peace. But just try to find peace with yourself, and if need be, keep moving on and do better for the sake that each and every day is a blessing, that we make it through each and every day. I'm good right now, but it's really gruesome. Yeah. I'm sorry you had to see that, brother. That's like a super visceral experience. थे तालिबान के आने के समय पे वो सारे दोबारा शुरू किए गए। चाबहार पोर्ट का यूज किया गया ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और इससे तालिबान का ऑफिशियल रिस्पांस क्या आया कि आज तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ओपनली इंडिया को शुक्रिया किया है, और तालिबान ने इंडिया को एक सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर बोला है। टेररिज्म पर भी तालिबान ने आश्वासन दिया है भारत को कि हम अफगानिस्तान की जमीन इंडिया के खिलाफ आतंकवाद के लिए यूज नहीं होने देंगे। बताइए, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1999 में इंडिया की फ्लाइट हाईजैक करके कांधार। It really is like you have to take every day as a blessing. Like if you make it to the end of the day, count your blessings. It's so easy to get caught up with all the bullshit. एस जयशंकर ने Be so 2021 में so ईरान thankful that you made it through the day. दिया था कि यूएस सैंक्शंस कितने भी लगे, लेकिन Like I'm making it as a joke and being lighthearted at it, but at the end of the day, we do live in a wild GTA server. So if you can make it through a full cycle in our day, right? Be grateful. Go tell your parents you love them. You were a pain in the ass one day, and they had to put up with you. Let them know that you care. When a friend maybe gets on your nerve, just bite your tongue. Give them grace. We wake up each and every day not knowing what the next day is going to really foretell, what's really going to come. We're all laying out the planks of wood, that's the bridge of life out in front of us as we walk. So just be grateful, give grace, and try to make people laugh along the way. हम चाबहार पोर्ट को बिल्कुल भी अबैंडन नहीं करेंगे। और आप देखिए, इंडिया ने यूएस के साथ भी अपने रिलेशंस को बैलेंस किया और ईरान के साथ भी अपने रिलेशंस को बैलेंस किया, जिससे सेंट्रल एशिया तक क्रिटिकल ट्रेड रूट मेंटेन रहा और एनर्जी, ट्रेड और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी स्मूथली चलते रहे इन तीनों देशों के बीच में। 2023 में इंडिया ने कतर के साथ हाई लेवल नेगोशिएशंस करके 8 इंडियन नेवी वेटरन्स की रिलीज सिक्योर की, जिनको पहले डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। इसमें भी माना जाता है कि एनएसए अजीत डोवल बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे थे। ओमान ने इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक दुकुम पोर्ट का एक्सेस दिया है, जिससे इंडियन नेवी की इंडियन ओशन में रीच और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बहुत एनहांस हुई हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इंडिया इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप विद कंट्रीज जो रिफॉर्म करना चाहती थी, इट वाज अ जेन्युइनली गुड इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया। जैसे कि 2009 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना, या फिर सोनाक्षी सिन्हा या सोनम कपूर को वेट लॉस के पहले डेट करना शुरू करना। दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट का देखिए रिटर्न क्या मिल रहा है भारत को। इन इस्लामिक देशों ने रिफॉर्म का रास्ता चुनना शुरू कर दिया है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से मिले थे, तो पैलेस्टाइन के बारे में उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारा क्या लेना देना है। अब ये बयान सुन के छाती पे सांप लौटना कहावत सुनी होगी, लेकिन ये बयान सुन के तो पाकिस्तान जैसे देशों के छाती पे नागराज खुद आके प्रभु देवा वाला ब्रेक डांस कर रहे होंगे। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने मक्का में पैलेस्टाइन का झंडा और कैफिया लहराने पर भी बैन लगा दिया था। सऊदी अरेबिया ने यूरोप को कहना शुरू कर दिया कि यूरोप में रहने वाले मुस्लिम्स जो हैं, वो एक दिन यूरोप के लिए बहुत डेंजरस बनने वाले हैं। चाय से ज्यादा केतली गरम है। प्रॉफेट मोहम्मद के जो असली डिसेंडेंट्स हैं, उनके लिए अब ना तो म्यूजिक हराम है और ना काबा का होलोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ब्लास्फेमी माना जाता है। एमबीएस ने हदीद की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की सलाह दी है ताकि No, this is going to be a good segue because I saw that ABTV put out something about how UK has fallen, and it seems like Sharia law is trying to work itself through Europe, and it's very ominous to see. फंडामेंटलिस्ट और पावर हंग्री लोग अपने फायदे के लिए हदीद को और कुरान को एक्सप्लॉइट ना करें। यहूदो हनूद के साथ सऊदी और यूएई की बढ़ती क्लोजनेस देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क के दिल में कुछ ऐसी आवाजें निकल रही होंगी। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। इन्होंने पाकिस्तान से आने वाले वीजा भी कम कर दिए हैं। कई पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है।
the issue of Pakistani beggars. Riyadh said that it could be forced to take action and restrict pilgrimage. I feel like whenever I hear like Indian news, it's always her face. Is she like the spokesperson for like India and Indian news? I swear. Visas for For like people mainstream from media. Pakistan. और आप देखिए कि ये जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप I hear इंडिया no ने other बनाया chick, है it's always just और her. जो रिफॉर्म आ रहा है इन देशों में, इससे सिग्निफिकेंट कल्चरल बेनिफिट्स भी भारत को मिल रहे हैं। और आई वुड आर्ग्यू कि ये एक्चुअली सबसे शॉकिंग पार्ट है। As you see yourself, अबू धाबी में इतना बड़ा भव्य हिंदू मंदिर अभी बनकर तैयार हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद जाकर इनॉग्रेट किया है। महिलाओं को अब ड्राइव करना अलाउ हो गया है सऊदी में। नॉन मुस्लिम्स के लिए सऊदी में लिकर स्टोर्स खुल रहे हैं। योगा जैसे हिंदू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिल रहा है। कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं योगा और मेडिटेशन के। रामायण और महाभारत जैसे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को स्कूल करिकुलम में अनुवाद करके इंक्लूड किया जा रहा है। 2023 में फॉर्मर अमेठी एमपी स्मृति ईरानी ने मक्का मदीना में दुनिया की पहली नॉन मुस्लिम डेलीगेशन No hate. I'm just like, man, I only see her. सर भी कवर नहीं किया था और फुल हिंदू No, she's just a famous reporter. Like the most famous. यूएई और सऊदी जैसी कंट्रीज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी Yeah, she's दबा the दबा face के of the इन्वेस्ट कर mainstream. रही हैं। और ये शायद उन लोगों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग रिमाइंडर है जो लोग कहते हैं कि देखिए मुस्लिम्स कभी भी Oh, रिफॉर्म नहीं कर that's सकते। cool, मुस्लिम Shubi. 7th सेंचुरी में ही हमेशा फंसे हुए रहेंगे। So हम she clearly started देख on सकते YouTube हैं and कि social कुछ media देश and went ऐसे हैं mainstream. जिनकी अगर लीडरशिप स्ट्रांग हो, जिनमें अगर जेन्युइन चाहत हो, तो चेंज आ सकता है। तो अल्टीमेटली देखिए ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, बिल्कुल वैसी ही जैसे यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील वाली जीत थी हमारी। इंडिया ने अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क और स्मार्ट डिप्लोमेसी का फुल इस्तेमाल किया है और वो समझ गए हैं कि कुछ कंट्रीज आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत पहले से शुरू कर दिया है। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि इंडिया ने दुनिया के 2 सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम देशों के साथ क्लोज टाइज बना लिए हैं और साथ ही रेडिकल इस्लामिस्ट सरकार जैसे कि पाकिस्तान उनको साइडलाइन भी कर दिया है। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से मोदी गवर्नमेंट की इसके अलावा कौन सी बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट रही है या बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर रहा है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। Okay, you want to know what I think? I think the best foreign policy is yet to come. Is I'll tie it down again. I'm gonna keep shooting my shot. We're gonna keep calling this. I think Modi and Trump are really going to set up a whole new distribution agreement, new trade. I don't want to say trade war, trade relationship. With like taking a lot of what we used to just delegate to China. Like we used to delegate like 90% of our shit to China, it feels like, and 10% to Saudi Arabia and Russia for oil. But now it feels like we're taking that back and we're redistributing it and gonna get like a majority of it, like 60% is gonna go to India, and then 40% is gonna be spread more evenly. So I think we'll see what actually comes out to fruition, but I think that's gonna be India's best foreign policy that ever happens, is how the relationship with America is about to unfold. Truly, I think it's about to be a beautiful thing. Modi is expected to come to India on the 18th, according to my knowledge. Is okay, Modi or Trump? That's what I thought. I thought Trump was going over to India, and then while he was in India, he may hop over and see JJ. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.